All right, children. So now we are into the 7th session. All right. The chapter is 14, statistics. We found mean, median, and then even mode. Conceptually, we understood how to find mode. What is mode and how to find mode. All right. Today we'll see the sums where we will find the mode, and the sums where mode is given and there are missing frequencies to be found. Okay. So here is one extra example, extra illustration 1 of session 7. All right. Okay. Let's read the question and see what are we supposed to find here. Okay. Daily wages of 90 employees. I am an employee of this institution. I'm working here. So those who work in institution, company, factory, whatever, they are employees. And जो मालिक है, master है, उसको कहते हैं employer. All right. So how many employees are here in this information? Of a factory are as follows. Daily wages, रोज का पगार उसका. Okay. Find the modal wage of an employee. Wage मतलब पगार और daily wage मतलब रोज का. 150 rupees to 250 rupees per day. कमाने वाले कितने एम्प्लॉइज है इस फैक्ट्री में? 4. 250 to 350 डेली वेज. रिसीव करने वाले कितने एम्प्लॉइज है? 6. Those employees out of 90 who are receiving daily wage of rupees 350 to 450. Of course, 450 is not included because this is continuous frequency distribution, right? तो वैसे कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं? So that is the information that we have. We have to find the mode. Find the modal wage. मतलब mode. Is that clear? अब डेली वेजिस को हम कहते हैं क्लास और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी FI. Is that clear? आप क्लास और फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना चाहते हो तो भी ठीक है. क्या ढूंढना है? मोड. मतलब पहले मॉडल क्लास चाहिए. इफ यू वांट टू यूज दैट फॉर्मूला, मॉडल क्लास. और बड़ा आसान है मॉडल क्लास बोलना. Do you need any extra column to construct, build up? No. When you have to find the mode, there's no need of any extra column. Which column you will use? And which frequency you will find out? Highest. So go through all the frequencies. 4, 6, 8, 12, 33, 17, 8 or 2. Which is the highest? Okay. ये 33 वाला highest है. उसको F कह दो क्योंकि यहाँ F चाहिए हमको. वो जो क्लास है, that is your modal class. That is your modal class. फिर क्या करते हैं? जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी उसके आगे F, ऊपर भी F लिखते हैं, नीचे भी F लिखते हैं. और ऊपर से शुरू करो. F0, F1, F2. That's all. Okay? Or how do we start? Here. The highest frequency is 33. Therefore, 550 to 650. 550 to 650 is the modal class. Therefore, L, F0, F1, F2 और H ये सारी चीजें हमें चाहिए. कैसे मैंने ये सब लिख दिया? We know that. मोड की फॉर्मूला कौन सी लगेगी? Z is equal to L plus F1 minus F0. फिर यहाँ डबल F1 minus F0 minus F2 multiplied by ब्रैकेट में लिख सकता हूँ. तो what is L? आप बता सकेंगे what is L? Correct. 550. What is F0? 12. What is F1? Yes. लाइन में ये F2
और क्लास हाइट कैसे डिसाइड करोगे? वेट 950 माइनस 850 100, 850 माइनस 750 100. वो तो पहले ही आप चेक कर लीजिए whether the class length is constant or not. And as I said, mostly you will have frequency distribution which is continuous and having constant class length. लेकिन नहीं होगा तो आखिर में देखेंगे हम लोग, राइट? चलिए, so what is class height? इसको मैं क्लास लेंथ बोलता हूँ, क्लास हाइट बोलता हूँ, कभी कभी क्लास विड्थ, WIDTH, विड्थ पौड़ाई, लंबाई गुणाई लंबाई पौड़ाई અને ઊંચાઈ એમ કહીએ છીએ ને આપણે, length, breadth and height. Breadth, for breadth there is other word which is called width. So in objective question sometimes they will say class length, class height या class width. It means the one in the same name. Statistics में ऐसे multiple names ज्यादा है. Class mark, central value, mid value, एक ही चीज का नाम है. Are you getting me? Okay, fine. We are ready. We know that formula में लिख दिए. So let's put the value. What is L? 550. वो अलग ही रहेगा. Plus bracket में F1 33 minus 12. 33 minus 12. क्या? Now 2F1. क्या 33 का डबल डायरेक्ट लिख दे? Yes. वैसा ऐसे कर रही है. अभी तो फर्स्ट पीरियड चल रहा है. हाँ बोल बेटा. सुबह 5 बजे इसलिए उठा ताकि 8 बजे तू सो सके. चलो 2F2, 2 times 33 that is 66 minus 12 और minus 17 multiplied by the H is. पहले इसको निपटाओ. ये कैलकुलेशन थोड़ा संभल कर करना है. You will need patience. The first term 550 as it is. Now 33 minus 12. अब प्रेम से कर लो. 1 और 2, so that is 21. Now 66 minus 12, 4 or 5 minus 17, 7 or 3, so that is 37. Okay, multiplied by 100. ये कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है. So 550 as it is और 21 into 100, 2100 है ना. Divide by 30, तो यही करना होगा आपको. Divide by 37. 5 जा जाएगा. So 5 जा 35, 3 और 18. So 5, 2. Okay, and there is one more digit to be brought down. 250. Now 6 जा जाएगा. 6 जा 7, 6 जा 42, 4, 20, 18 और 4, 22 है ना. So 8 और 2, 0.0280. 6 जा जाएगा again 6 जा. 7 जा 7 जा 7 जा 7 7 जा 49, 4, 21 और 25. Yes, 1 और ये 3, 0. ओके, अब कितना जाएगा? 7 जा आगे. इट विल बी अराउंड 7 जा 8 जा 8 जा ले लो. चलो 8 7 जा 56, 5, 24, 29. ठीक है. अब मैं आगे नहीं कर रहा हूं. फर्स्ट टर्म 550 प्लस, बोलिए. अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो छोड़ दिया मैंने. 56 प्लस 0.78 डॉट 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 नहीं रखना हूं. सो आई एम पुटिंग अप्रोक्सीमेटली. फिर से प्रेम से ऐड करो. 550 पॉइंट, यहां पॉइंट नहीं है लेकिन 0 के बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 7 8 है तो ऊपर 0 0 लिखेंगे. पॉइंट से पहले 6 और 5 है वो लिख दिया. 8 7 6 10 6. So this is 606.78 approximately, and this is what? Mode Z, and this will be in terms of rupees. Here are rupees. All right. So modal class, modal wage. अभी आंसर लिखना है नीचे. The modal wage of an employee is rupees 606.78 approximately. Okay, so here is your screenshot. आपको खुद लेना है. Okay, all right.
Here is the next extra example of this session. The mode of the data is given and you have to find the missing frequencies. Let's read the questions. The mode of the following frequency distribution is actually off. It should be off. Of the following distribution of 165 observations is 34.5. What is 34.5? The mode of the data. With how many observations? The total observation, sigma fi, or you can say n, that is 160. Find the values of A and B. If you go through the table, you can see A and B, they are found as unknown frequency. अभी आपको मैंने एक आइडिया दिया था. You never write like this. You put the arrow and write outside. You understand? Yes. So this A and B is what we are supposed to find. What is given? Mean, median, या mode? So we'll have to go through the procedure of finding the mode. Mode वाली फॉर्मूला लगेगी if you want to find the missing frequency. लेकिन एक इक्वेशन सीधा मुझे यहां से मिल जाएगा. कैसे? What is this? Fi. So down I'll get sigma Fi. 6, 9, 10, 15. 1, 2, 7, 8, 9. Plus A plus B. That is equal to 165. या n भी कर सकते हैं. n. That is equal to n. That is equal to 165. So you can say sigma fi is 165. या you can say n is equal to 165. समझ में आई बात? लेकिन यहां से मुझे एक इक्वेशन मिला. Therefore, बोलो 95 plus A plus B is equal to 165. मैंने ये लिया. Therefore, बोलो A plus B is 165 minus 95. बोलिए orally if you can do 70. Very good. This is equation number 1. Third standard, third chapter I mean. Okay. Linear equation in two variables. ये linear equation in two variable मिला. एक और मिलना चाहिए तो हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. या तो फिर दो में से कोई एक की वैल्यू मिल जाए तो दूसरे की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. Let's see. So from sigma fi, which is 165, your number of observation which is 165, I got a linear equation in terms of A and B. Now the procedure of finding mode. मोड के लिए कोई नई कॉलम की जरूरत नहीं है. You should know. मीडियन होता तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते. मीन होता तो पहले xi फिर ui और fi. स्टेप डेविएशन मेथड सबसे आसान है. लेकिन यहाँ मोड है तो मोड के लिए कोई कॉलम लेनी नहीं है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अभी तो गड़बड़. दो फ्रीक्वेंसी मालूम ही नहीं है. यू डोंट नो व्हाट आर दोस ए एंड बी. सो कौन सा हाईएस्ट? अरे भाई वो हाईएस्ट देखना ही नहीं है क्योंकि हाईएस्ट तो हमको पता ही नहीं. वी कैन नॉट गैस कि ये हाईएस्ट होगा या 53 हाईएस्ट होगा या बी हाईएस्ट होगा. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. यू अंडरस्टैंड? लेकिन हमारे पास मोड ही है. व्हाट इज मोड? तो मॉडल का सीधा मिल जाएगा. लुक 34.5 कौन से क्लास में लाई करता है? Which class does it fall? Yes, it lies between 32 and 41. 34.5 it lies between this. All right. तो ये अपना मॉडल क्लास. उसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 53 है. एनीवेज, उससे नहीं पता चला. हमें कैसे पता चला मॉडल क्लास? तो हियर Z मतलब मोड is equal to 34.5. Therefore, 32 to 41 is the modal class. हाँ, right? चलिए, तो अब जो चीज चाहिए सब लिख लेते हैं. Therefore, हमें चाहिए L, F0, F1, F2 और H. ये सारी चीजें चाहिए. 5 चीजें. L तो मिल गया 32. Alright. इसके सामने हम कहेंगे F, उसके ऊपर F, उसके नीचे F. F0, F1, F2. So what is F0? What is F1? And what is F2? My God, both are involved. दूसरा इक्वेशन आने वाला है.
चलिए, व्हाट इज F नॉट? A. व्हाट इज F1? 53. F2 B. और क्लास हाइट ये सबसे 9 है. 68 minus 59 is 9. 59 minus 50 is 9. 50 minus 41 is 9. थ्रूआउट चेक कर ही लेना है आपको. 41 minus 32 9. 32 minus 23 9. 23 minus 14 9. So class height is 9. All right, we know that. We know that. What we know? The formula to find mode, which is L plus F1 minus F naught. कोई F2 बोला? ये 2 times F1 minus F naught और यहाँ minus F2. ये ब्रैकेट multiplied by S. पावली बड़ी गाड़ी है, एमडी पावली के फ्लो नहीं होते हैं. और पे अटेंशन कर. चलिए, now see, please pay attention. Now all values we know. Z also. गड़ा हूँ करे equal to Z तो लखे. एला भाई Z तो पहलू है, वो तो पहली वैल्यू से तो पहलू रखो. You are not writing equal to लखी ना बाकी नो लखे. तो छिल्ला स्टेप पर Z कर दिया भी दे हूँ आगे खबर थी. अरे प्रॉपर इक्वेशन चलना चाहिए. बोले व्हाट इज दैट? 34.5. वही है ना, इक्वल टू L. अभी एवरीथिंग इज रेडी. 32 प्लस F1. ओके, ये इंटरेस्टिंग है. 53 माइनस A. चलो, 53 का डबल 106 माइनस F नॉट A माइनस F2 B. माय गुडनेस, मल्टीप्लाइड बाय. अब ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो रहा है. तो पहले एक काम करते हैं, 32 को एक बाजू ले जाओ. सो व्हाट इज 34? देयरफॉर 34.5 माइनस 32 इज इक्वल टू, ये सिंगल टर्म रह गया. बोलो 53 माइनस A अपॉन 106 जो भी है, माइनस A माइनस D, माइनस A माइनस D मल्टीप्लाइड बाय. ये क्या आंसर आया? सॉरी, इट्स 9. इट्स नॉट 100, इट्स 9. चलिए, क्या आंसर आया? 2.5. So I'm going to write 25 upon 10. और वो 9 यहाँ ले आओ, multiply by 9. That is equal to 53 minus A upon 106 minus A minus E. समझ में आई बात? कुछ तो कैंसिल हो रहा है. 5 2s are 5 5s are. So therefore 5 upon 8 भी कुछ नहीं कैंसिल होगा. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 106 माइनस A माइनस B. और ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 53 माइनस 9 2s are 18 है. वेरी गुड चिल्ड्रन, थैंक यू. चल, 5 into 106 530 माइनस 5 into A 5A माइनस 5 into B 5B. 18 into 53 बड़े क्रम से मल्टीप्लाई करना होगा. 0 3 5 24 2 40 42 4 5 9. So that is 954 minus 18. चलिए, माइनस 18 एक और बाजू ले जाओ. प्लस 18 हो गया. ये माइनस 5 है, ये माइनस 5 है. ये सगा संबंधी भेगा करो रखता हूँ. सुने, 954 माइनस 5 30. 18A में से 5A गया, 13A माइनस 5B और 4 2 4. ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन. अब ये दोनों को सॉल्व करना है. तब वरना अब थर्ड चैप्टर के हिसाब से उसको सॉल्व करना है. बोलो, इसको एलिमिनेट करेंगे B को, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है. और इसका 1 है, कोई इक्वेशन उसका 5 है. सो एलसीएम भी छोटा 5. बोलो, 5 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय, और 5 बनाने के लिए 5 ही है. सो मल्टीप्लाइड बाय, जो हम स्टेटमेंट लिखते थे. ऑलराइट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 respectively by 5 and 1 we get. चलिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5A हो गया, प्लस 5B हो गया. राइट? आर यू गेटिंग मी? और 70 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 350. ये सेव रहेगा. सो 13A माइनस 5B
that is 424. आपको सीधा add ही करना है 424. Okay. Now this cancels, right? Therefore 18a is equal to ये भी total 777. Hope this is a multiple of 18. है ना? Therefore a is equal to 774 upon 18. 18 fours 72, 5 बचा और 18 threes 54. Therefore what is a? 43. एक तो मिल गया. अब कोई भी एक इक्वेशन 1 में डाल दो, वो आसान रहेगा. b ढूंढना है ना. Alright. Therefore equation 1 gives a, लेकिन a क्या है? 43 प्लस b क्या है? वही तो ढूंढना है. इज इक्वल टू क्या है? 70. Therefore b is equal to 70 minus 43 and that is 27. So here are the two missing frequencies, A and B. Alright children, and here's the screenshot. You have to write down in your notebook. Is that clear? Sure? So two more sums we are going to see now. One, again finding the mode, and second, yes, missing frequency, so that we have enough practice on it. Alright? Alright, here we are with the next sum of similar kind. It is extra illustration number 3. Find the mode. Straight away you are told to find the mode. What is the symbol of mode? Z. Alright, so Z value formula lagi. Of the following data. Well, the class is given, frequency is given, and that's all that we need. Acha. What will be the new column that you will build up here? Mode. Yes, for finding the mode, there is no need of any column. We will be using frequency column. And from the frequency column, you can directly get the modal class. And once you get the modal class, applying the formula, you will get the mode. Achha. How do we find the modal class? Simple. Highest frequency. कहाँ है highest frequency? Frequency column में. And which is the highest one? 82. जो highest है उसको मैं F कह ही दूँ. और वो क्लास अपना modal class बन गया. F के ऊपर है, F के नीचे है, और F0 ऊपर से नीचे, not 0, 1, 2. That's all we need. I'll write here now. क्या लिखूंगा? Here, the highest frequency. Here, the highest frequency is 82. Therefore, the modal class is 28 to 35. Therefore, the modal class is 28 to 35. Therefore, I am going to get L, F0, F1, F2 and H हमने देखा ना, पहले ही देखना चाहिए था. क्लास हाइट या क्लास लेंथ कांस्टेंट है और 7 है, और ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो फॉर्मूला लगेगी वो कंटिन्यूअस के लिए. चलो, व्हाट इज L? 28. What is F0? 42. What is F1? 82. Yes, 82. और F2? 71. और क्लास हाइट? 7. We know that. लिख लो यहाँ. We know that. What we know? Z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by Here we are. Simply values रखनी है हमको. Z की वैल्यू तो ढूंढनी है. L is 28. That is a separate term. Be careful. Bracket में F1 minus F0. 82 minus 42 upon double of 82. 2F1 नीचे 2F1 double of 82. 164. ये orally कर लो या साइड पे मल्टीप्लाई कर लो. 82 multiplied by 2 2 is 0.16. Okay, चलिए. Minus F0 that is 42 minus F2 that is 71.
ये ब्रैकेट होगा मल्टीप्लाइड बाय क्लास हाइट which is 7. That is equal to 28 plus 28 plus. Why the graph is talking? I don't know. 40 upon 164 में से पहले 42 निकालो, 2 2 1, उसमें से 71 निकालो, 1 और 5, so that is 51 multiplied by 7. Unfortunately further simplification नहीं होगा, right? So 7 4 28, 28 plus 280 upon 51. Children, कुछ तो कर सकते हैं हम लोग, 28 को कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, if you want, दोनों से 28 कॉमन निकल सकता है, so this will be what 28. चलिए वो भी वैसे भी एलसीएम निकालना पड़ेगा नॉर्मल, so what I'll do, 280 divided by 51, 5 पाइजा, so 5 आ जाएगा, 51 पाइजा 255, माइनस करो 5 और 7 में से 2 which is smaller than this. अब आगे तो नहीं होगा, और करना हो तो डेसिमल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पॉइंट और 0, 5 नहीं जाएगा, 4 जा 204, ये 6 और ये 4, 0, फिर 5 9 जा 45, so 9 जा 459, 1 बचा, that's enough. So that is 28 plus 5.49 approximately. अब 28 में 5 ऐड करोगे तो 33.49. This is more. Got more? Did you get the more? Yes, sir. So here is your screenshot. आपको स्क्रीनशॉट लेना है और बुक में एंटर करना है. Now I'm going to give twist here. All right? I'll remove this. यहाँ नया क्वेश्चन बनाने वाला हूं और मिसिंग फ्रीक्वेंसी. कौन सी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है? F0 जो 42 है, ये मिसिंग बता रहा हूं. ये F1 वो भी मिसिंग, वो 82 था, राइट? दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी. एंड व्हाट इज द मोर? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चलेगी, नहीं तो ये राउंड फिगर नहीं आएगा, होल नंबर्स नहीं आएगा. सो आई टेक दिस. इसका क्या जवाब आया? 5 इंटीजर 25 upon 51. 28 plus 5 23, sorry 33. Okay, find the missing frequencies of the following data whose mode is ये 33 integer 25 upon 51. Don't worry, ऐसा देना पड़ा. Okay, are you getting me? Yes, sir. चलिए, I'll remove this part and see the procedure to find the missing frequency. All right, missing frequency को वो बता रहे हैं A और B, तो हमें वही लिखना होगा. ये A है, they have written it here A and here B. Find the missing frequency. अथवा find the values of A and B. Okay. In following data. चलिए. As I said, ऐसे मुझे नहीं लिखना है, एरो करके थोड़ा सा बाहर. ऑलराइट. अच्छा, इस क्लास का टोटल फ्रीक्वेंसी भी देना चाहिए. n is equal to 360. सिग्मा fi या n. टोटल फ्रीक्वेंसी इज 360. मेरे पास कितनी छोटी सी जगह है, सो आई रोट ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का n क्या है? टोटल, दे मे राइट इन वर्ड्स आल्सो. टोटल फ्रीक्वेंसी इज 360 अथवा सिग्मा fi इज 360. ये रहा सिग्मा fi आपका, है ना? नीचे टोटल करोगे तो मिलेगा सिग्मा fi, इसलिए उसको साइड पे रखा है. 7 12 13 और 17 और 26, 4 7 10 17 22 23 plus A plus B. This is n.
इसको n भी बोलते हैं. And what is total number? Yeah, sigma fi 360. Hey children, you can say sigma fi is this, sigma fi is n, sigma fi is 360. You can say this is equal to n. Yeah, you can say this is equal to 360. चलिए 236 plus a plus b is equal to 360 from here. एक इक्वेशन यहाँ से ही मिल गया. Therefore, a plus b is equal to 360 minus 236. 360 minus 236. So 4 or 2 or 1. So 124. And that is your first result. You can see it's a linear equation in two variables a and b. ऐसा तो हम आगे भी देख चुके हैं, लेकिन अगले कैलकुलेशन में डायरेक्टली a की वैल्यू मिलती है या b की वैल्यू मिलती है. But in this case, you are going to get another equation in terms of a and b. Let's see. What is given to us for this information? Mode. So we'll go for the mode procedure. Right? Mode के लिए highest frequency चाहिए, लेकिन highest frequency पता ही नहीं. You cannot predict which will be the highest frequency. But then mode is given to you. What is the mode of the data? 33 integer 25 upon 51. That means it is 33 point something. अब वो 33 point something कौन से क्लास में आएगा? कहाँ से आएगा? कहाँ आएगा? कौन से क्लास में? This value 33 point something falls in which class? 28 to 35. Very good. 28 to 35. So आपको modal class मिल गया. You got the modal class. उसका मतलब ये चल गया कि B is the highest frequency, लेकिन कितनी है पता नहीं. Right? But how did you get the modal class? Not from the highest frequency. From the mode that is given. So that is how I am going to start here first. अच्छा, okay. ये अपना मॉडल क्लास. So I'm going to call it this as F. ऊपर भी F लिखूंगा, नीचे भी F लिखूंगा. ये F0, ये F1 और ये F2. Is that clear? और क्लास हाइट तो क्लियर है. That is 7. Correct. Okay. Now मैं क्या लिखूं? Here mode Z is 33 integer 25 upon 51. Children, okay. यही लिखता हूं. Therefore, the modal class is 28 to 45. Therefore, L, F0, F1, F2 and H. सब values डाल देते हैं. What is L? 28. What is F0? 8. What is F1? B. What is F2? 71. What is H? 7. We know that Z is L plus F1 minus F0 whole upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Some children do not write here Z. वो नहीं लिखते हैं, सीधा यही लिखते हैं. आदत हो गई है. Be careful. और लास्ट स्टेप में कहां से लाते हैं पता नहीं. Alright. Therefore, Z वो वैल्यू अवेलेबल है, सो लिखो 33 इंटीजर 25 अपॉन 51. L is how much? 28 plus yes F1 B minus F0 A whole upon 2F1 2B minus F0 A minus F2 71 into class height 7. एक काम करते हैं, इसको मिक्स नंबर वाला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सो 51 into 33 0 3 15 1 5 3 3861 और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 25. सो दैट इज 8071. सो 1708 अपॉन. अब ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ है. -20 अपॉन. इसको हमेशा ये साइड ले आओ ताकि ये सिंगल टर्म रह गया. B minus A अपॉन 2B minus A minus 7 और मल्टीप्लाइड बाई 7. इसको भी यहां ले आना है, लेकिन अभी रखो. ओके. सो अब LCM निकालेंगे. What is LCM? 51. So यहाँ 1 और यहाँ 51. So 1 into this is 1708 minus. Yes, थोड़ा सा लंबा सा कैलकुलेशन होगा. 0 40 14 8 2 so 1428 1428. All right. चलो मैं नीचे ले आया 7 को.
7 को नीचे ले आया क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के साथ, सो अब बचा सिर्फ ब्रैकेट b अपॉन a होल अपॉन 2b माइनस a माइनस 7। ओके, होप ये कुछ कैंसलेशन हो जाए। अब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा? 0, 10 में से 2, 8, ऐसे कभी नहीं करना। 7 से 3, 7 में से 4 जाएगा तो 7 नहीं 6 में से अपॉन, चलिए 51 मल्टीप्लाइड बाय 7, फॉर्चुनेटली कैंसिल हो रहा है। b माइनस a अपॉन 2b माइनस a माइनस 71। Is that clear? 7 1 7 4। अब कुछ नहीं हो रहा है। Now it's 8th standard linear equation in two variables, cross multiplication. So वो बड़ा सा काम है, 40 into 2b minus a minus 7 और 51 into b minus a। कुछ बच्चे ऐसे नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं, 51b लिख दिया और ये तो माइनस a ही लिखा, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। 2b into 40 80b लिख दिया और बाजू में माइनस a माइनस 71। अरे भाई सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है 80b, फिर माइनस a ही लिख देते हैं भाई, माइनस 40 हुआ और फिर माइनस 71 ही लिख देते हैं। अबे 7 4 1 4 4 7 28 और एक 0 और ये माइनस, ये 51 भी लिखते हैं, नो डाउट 51 भी लिखते हैं, लेकिन माइनस ही लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं तब। हाँ, सो दिस इज माइनस 51 एज आई ऑलवेज से, सगा संबंधी ने देखा करो। ऑलराइट, ये a वाला छोटा है, ये a वाला बड़ा है, इसको ये मान लिया 51a माइनस 41 साथ जोड़ी भी देंगे प्लस 80b माइनस 51b प्लस माइनस हुआ और ये 2840 प्लस हो गया, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 9a और प्लस, और दिस इज गोइंग टू गिव मी 60 11 डेफिनेटली 11 एंड दिस इज 7 है ना, 9 और 20 with minus sign, b is equal to 2 plus sign plus 80 plus होगा डेफिनेटली, that is equal to 2840। Is that clear? अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन, अब कुछ नहीं कर सकते, आपको यस वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। थैंक गॉड यहाँ कोएफिशिएंट 1 ही है, 11 इसको एलिमिनेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 11 करना पड़ेगा और यहाँ तो है ही, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली बाय 11 and 1, we get, ये बोलो 11 होगा, ये 11 भी होगा और ये को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11a प्लस 11b and 1240 1240 124, so 4631, so that is 1364, 1364. All right, now the next one is 11a plus 29b, that is 2840. okay, अब साइंस चेंज करना होगा आपको, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये गया डिफरेंट साइन, 18b विथ माइनस साइन, ओके 6 है ना, 13 में से 7 और 5 में से 7 में से 3 4 और ये 1 विथ माइनस साइन, होप ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 1476 upon 80, hope that is a multiple of 80. all right, by 9 થી જાય છે, 9 2s are 9 1s are 9, 5 remains, 9 6 are 54, 3 remains and 9 4s are 36, 2 8s are 2, therefore b is equal to 82। बहुत मेहनत किया, ये f2 all right, सॉरी f1 वो 82b है ना। अब आगे क्या करना है, मैं नहीं कर रहा हूं, इक्वेशन 1, so equation putting a is b is equal to equation 1, that is going to give you the value of a and what you will get 42। all right, putting by from equation 1 यूज करोगे तो a is equal to 42 आपको मिल जाएगा। That clear? Understood? चलिए, so ये अपना स्क्रीनशॉट
एंड देन यू कैन कॉपी, लेकिन ये काम पूरा करना होगा यहाँ। ओके, अब एक और ट्विस्ट दे रहा हूं। ऑलराइट, ओरिजिनल जो था वो फिर से लिख रहा हूं। हाँ, यही सम ये 71 था, राइट? ये 82 और ये 42, बराबर है क्या? नाउ इसको निकाल रहा हूं और m बोल रहा हूं, ऑलराइट, और इसको निकाल रहा हूं और उसको बोल रहा हूं n, ऑलराइट, ओके, एंड देन फाइंड द मिसिंग frequencies, find the missing frequencies, ओके। मोड इज सेम, यहाँ एरो कर दिया, यहां भी एरो कर दूंगा, राइट? अब जो प्रोसीजर हमने अभी की वही प्रोसीजर आपको वापस करना होगा। चलिए देखते हैं। सर इतनी मेहनत फिर से इतना लंबा है? नहीं, आप बच जाओगे, क्योंकि एक वेरिएबल F1 F2 F0 में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। Fine. What is the total observation? 360. मैं लिख रहा हूं पहले इसका टोटल। 7, 9, 10, 19, 23, 2, 4, 7, 14, 18 और 6, 24. This is sigma Fi plus m plus n, and that is 360 is equal to n. Therefore, m plus n सीधा लिख दो ना? Yes, sir. 360 minus 243. Therefore, m plus n is equal to 7, 1 और 1. क्या था वो? ये m क्या था? 35 आई थिंक से। m क्या था? 35 और ये 82 है ना? n 82, तो वो तो आ रहा है 117 टोटल, है ना? वही तो मिला इक्वेशन। आप समझ रहे ना? ये कंपैरेटिव स्टडी से आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी मिलती है। यू अंडरस्टैंड? चलिए अब क्या करेंगे? एक इक्वेशन तो मिल गया, हम सिग्मा Fi itself बिकॉज टोटल ऑब्जर्वेशंस हुआ 360। अब प्रोसीजर करना पड़ेगा। कौन सा? मोड वाला। तो मोड तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो तो नहीं, लेकिन मोड ही दिया है 33 पॉइंट समथिंग। सो योर मीडियम मोडल क्लास इज, दिस इज योर मोडल क्लास। लिखते हैं आप, क्या लिखेंगे? हियर मोड Z is 33 integer 25 upon 50. Therefore, 28 to 35 is the modal class. Therefore, L, F0, F1, F2 and H. What are they? Let's see. ये modal class. So ये F, ऊपर भी F और नीचे भी F. F0, F1, F. अरे ये तो बच गया, वो कहीं पे आने वाला ही नहीं है। सर आया इधर, हाँ वही काम लगेगा, लेकिन यहां सिर्फ n आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आएगा n, सो यू आर गोइंग टू गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ n। तो उतनी मेहनत कम लगेगी। चलो L इज व्हाट? 28, ऑलराइट। F0 इज व्हाट? 42, ये n है और ये 71, दोनों वैल्यू नोन है। We know that Z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0. Please remember the formula. अभी भी हम दो सर के साथ बात कर रहे थे when Ravi sir was teaching you here. वही चीज कि ये लोग फॉर्मूला ही याद नहीं रखते, और मैंने उनसे वही बात की जो मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं। When we were learning, teachers were good, no doubt, but हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर आपके जैसी पावरफुल नहीं थी। सो वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड 60-70% ऑफ द पोर्शन, 50% कोई बार 40% ही समझ में आता था। लेकिन फॉर्मूला कोई भी पूछो हमको, वी यूज्ड टू लर्न दैट, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वी यूज्ड टू लर्न फॉर्मूला, एंड विद दैट 50-70% अंडरस्टैंडिंग वी यूज्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। हम होमवर्क भी कर लेते थे हर रोज। हाँ चलिए, आपके पास अंडरस्टैंडिंग 100% है, फॉर्मूला नहीं, आप याद ही नहीं रखना चाहते। आई डोंट नो व्हाई, लर्न द फॉर्मूला नहीं सीख। चलिए, नाउ Z इज गिवन,
इसे मिलकर इक्वलाइज करना, किसी को याद है क्या आया? 33 इंटीजर। ओके, पहले तो ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, 1708 अपॉन 51 वो आया, दैट इज इक्वल टू L। L is 28 plus F1 n minus F0 42 upon double of F1 2L minus 42 और minus F2 71 into class height 7। Alright, देखा सिर्फ n है, m तो है ही नहीं कहीं पे, so you are going to get directly the value of n। कितना होना चाहिए? आएगा। Therefore 1708 upon 51 minus 28 upon 1, चलिए, that is n minus 42 upon 2n minus, ये हम कर सकते हैं सेम साइन। टोटल 113 है ना, 113 विथ माइनस साइन, राइट, मल्टीप्लाई बाय 7। चलिए LCM 51 और वो 7 को भी यहाँ ले आते हैं। बोलो 1 और 51 किसी को याद है? 1708 माइनस 1428, वेरी गुड। सो n minus 42 upon 2n minus 113, वो 7 को हम यहाँ ले आए। चलिए therefore now this is 0 8 और 2 है ना, upon 51 into 7, 7 1s are 7 40, that is equal to n minus 42 upon 2n minus 11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, प्रेम से लिखो, डायरेक्ट मत लिखो। minus 113, that is equal to 51 times n minus 40, ये 80n हो गया, ये 4 3s are 12, 1 5 और 4 और एक 0, 51n हो गया, और माइनस 51 मल्टीप्लाई बाय 42, 0 4 22 10 2 4 1 2, ऑलराइट, दैट इज 2 1 4 2, सगा संबंधी 80 मोटो છે, राइट, सो 80n माइनस 51n, और ये माइनस 2142 है, और ये प्लस 424520, ये तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29n, और ये डिफरेंस साइन 4520 बड़ा है, छोटा 2142, सो 8 7 4 में से 3 और 2 है ना, 2 3 7 8, भैया क्या, n is equal to 2 3 7 8 divided by 20। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि अपना डिवाइजर प्राइम नंबर है। चलिए 2 3 7 8 divided by 29 30, so 7s are 9 7s are 63, 6 14 और 2, so that is 4 और 3, तो 8s आ जाएगा, 8s, क्योंकि ये 34 इससे बड़ा है, समझ में आ रहा है ना। 8 9s are 72, 7 16 और 23, यस, अब 5 बच रहा है, 8 2s are 58 हो गया, और होना ही चाहिए, therefore n is equal to 82, and then I'll ask you to complete to get the value of n. Okay, putting n is equal to 82 in equation 1, you will get n equal to 35. So you will have to complete that, and that's how you find the missing frequency. So children, that's all in our today's session. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day. Stay safe.